A very good morning, everyone. Good morning. A very good morning, sir. I hope you remember, yesterday we were talking about the qualities of a good teacher. Rather, we began yesterday with the quality of a good teacher. And that quality which we discussed was to have a smile on your face. A teacher, Yes, sir. I mean, the smile is your asset, you can say. That work for the children, when you enter the class and you enter the class with a pleasant smile on your face, children are happy to see you, so that becomes an asset for you, and that is the best quality that I feel every teacher should have, a big smile. So today we will be talking about few more qualities. Today no guest is joining us. When the guest is joining, I'll let you know, but not today. So today I'll be talking about some of the qualities. यानी हम कुछ और उन खास बातों पे बात करेंगे जो एक टीचर के अंदर होनी चाहिए. वो क्वालिटीज एक टीचर के अंदर होनी जरूरी हैं, और वो हमें कोशिश करनी है, हम सबको ये कोशिश करनी है कि वो सारी क्वालिटीज हमारे अंदर हों, चूंकि हमने ये प्रोफेशन चुना है. We have selected this profession, or we are into this profession by choice and not by force. Right? Do you agree with me that you are in this profession by choice and not by force? Do you agree? You can unmute yourself and just answer. You can unmute yourself and answer. Yes. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Just 1 minute. I will be sharing my screen where you can see. Yes, you can see the screen, right? Yes, Yes, sir. sir. Yeah. Okay, just go through it. Look at it very carefully. The screen which is playing. Just you have to pay attention. What is going on the screen? Keep them in your mind. Yes. Have you gone through? Did you read them carefully? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Do you want me to play once again? Let me play. Yes. Let me play once again. Pay attention. Okay. These are only 5 points. Just pay attention to these points. Yes. So we are going to talk about these few points. And the question is, what makes a good teacher? What makes a good teacher? And एक अच्छा टीचर जो है बनने के लिए आपके अंदर कौन सी चीजें होनी चाहिए, कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, वो हम जानेंगे, और उसके बारे में हम आज ये डिस्कस करेंगे, है ना. कि हमें आ चुके हम इस प्रोफेशन में आए हैं बाय चॉइस आए हैं, बाय फोर्स नहीं आए हैं. हमने खुद ने, जैसा कि मुझे मालूम है राहुल
ने इंजीनियरिंग किया, लेकिन उसके बाद राहुल ने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे टीचिंग प्रोफेशन ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे टीचिंग में जाना है, मुझे इंजीनियरिंग में नहीं जाना है. तो दिस इज व्हाट ही डिसाइडेड. ही had appeared for civil services also, preliminary exam he cleared also, but again he went for टीचर ट्रेनिंग. तो दैट मीन्स, दैट शोज कि हम जो भी यहाँ पर हैं वो सब बाय चॉइस आए हैं इस प्रोफेशन में. तो अब हमें ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि हमें अच्छा टीचर कैसे बनना है. अच्छा वो टीचर जिसको बच्चे याद रखते हो, जिसको बच्चे याद रखते हो. तो अगर आप देखेंगे तो पहला पॉइंट अगर आप देखें, क्या पहला पॉइंट है? पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स. यानी एक अच्छे टीचर में सबसे पहले वो जो हमने कल जो बात की थी स्माइल वाली, वो तो बिल्कुल एक अलग बात है कि यस, वो तो होना ही जरूरी है. उसके बगैर तो एक अच्छा टीचर बन ही नहीं सकता. यानी वो एक स्माइल, यू हैव टू हैव अ बिग स्माइल ऑन योर फेस. You must have a smile on your face when you enter the class. Not only when you enter the class, but when you enter the school premises. अब आप स्कूल बिल्डिंग में एंटर होते हैं तो आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होनी चाहिए. अगर आपके पास घर में कोई परेशानी थी, कोई तकलीफ थी, कोई टेंशन थी, तो उस तकलीफ को, उस परेशानी को, उस टेंशन को आपको घर छोड़कर आना है. उसको वहीं कहीं एक कोने में रखकर आ जाइए, और जब स्कूल आए तो उन टेंशन से दूर होकर आइए और एक प्लेजेंट सी, बहुत अच्छी सी मुस्कुराहट लेकर स्कूल बिल्डिंग में एंटर हो आप. तो जब आप अच्छे मूड में एंटर होंगे, जब आपका सुबह जो है बहुत अच्छी होगी, तो आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा. तो दैट प्लेजेंट स्माइल हैज टू बी देयर. अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल है वो नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल. यानी आपके पास आप बहुत अच्छे स्पीकर भी हों, बहुत अच्छे बोलने वाले हों, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हों आपके पास, कि आप अपनी बात दूसरों तक. कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या माने है? कम्युनिकेशन स्किल्स का माने है कि आप अपनी बात को दूसरों तक किस तरीके से पहुंचा पा रहे हैं. यानी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर है. और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो एक टीचर के लिए बहुत बड़ी एसेट होती है, कि जो आप बात करते हैं, जो आप बात कहते हैं, वो बच्चों तक आपकी बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है. आप अपनी बात को समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं, है ना. ये एक रूट है, एक्चुअली रूट है आपकी सक्सेसफुल और मेमोरेबल रिलेशनशिप का. कि आपका रिलेशनशिप तभी कामयाब होता है जब आप बहुत अच्छी कम्युनिकेशन कर पाते हैं, जब आप दूसरों को अपनी बात समझा पाते. कई बार हम बात अपनी कर रहे हैं लेकिन दूसरा हमारी बात को समझ नहीं रहा है कि हम उन्हें क्या कहना चाहते हैं. तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ये बहुत जरूरी हैं, और ये आपको अगर नहीं है तो उसको डेवलप किया जा सकता है. ये ऐसी स्किल्स है जिनको सीखा जा सकता है, करने के बाद हम प्रैक्टिस करें, बोलें, सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हों, उस तरीके से हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करें जो दूसरों को आसान लगे, अच्छा लगे. कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी वोकैबुलरी किसी के ऊपर जो है वो शो कर रहे हैं कि आपके पास बहुत बड़े हेवी वर्ड्स हैं आपके पास. वो कम्युनिकेशन नहीं होती है. कम्युनिकेशन होती है आसान जबान में, आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में, और बहुत ही प्लेजेंट वे में आप बात करते हैं. वो कम्युनिकेशन स्किल. तो एक पहली एक ये स्किल है जो आपके पास होनी चाहिए. उसके बाद जो हमारी सेकंड जो क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर इज टू हैव लिसनिंग स्किल्स. जहां आप कम्युनिकेट करते हैं, जहां आप बोलते हैं, तो वहीं आपको लिसनिंग स्किल्स भी आपके अंदर. यानी आप क्या चाहते हैं क्लासरूम में, जब आप एंटर होते हैं, जब आप बच्चों से बात करते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि बच्चे आपकी बात सुने, है ना. लेकिन सिर्फ बच्चों को ही नहीं, आपने भी बच्चों की बात सुननी है. वो लिसनिंग स्किल जो है वो आपके अंदर ये भी होना चाहिए मादा, कि आप बच्चों की बात भी सुन सकें, बच्चों की बात भी सुने कि बच्चे आपसे क्या कहना चाहते हैं. बीइंग ए गुड टीचर, यानी एक अच्छे टीचर का मतलब क्या होता है? एक अच्छे टीचर का मतलब होता है कि वो अपनी बात को बच्चों तक पहुंचा सके, और साथ साथ बच्चे अगर कुछ बात कहना चाहते हैं टीचर से, तो वो भी आप सुने. यानी वो क्वेश्चंस जब करते हैं तो आपको उनके क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना है, और उन क्वेश्चंस को आपने रिप्लाई भी करना है. इसका एक ये भी मतलब है कि टीचर के अंदर, टीचर और बच्चों में ऐसा रिलेशन पैदा हो कि बच्चा जो है वो अपने आप को टीचर तक, उसकी एक्सेसिबिलिटी यानी अप्रोच जो है वो इजी होनी चाहिए. बच्चा घबराए नहीं टीचर के पास आने से और टीचर के पास आकर अपनी बात कहने से. The children, they must have easy approach, easy access to the टीचर. वो तभी होगा जब वो कॉन्फिडेंट होगा कि मेरा टीचर जो है वो मेरी बात सुनेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार ऐसा होता है कि बच्चे, अगर वो रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, तो बच्चे कई बार अपने पेरेंट्स से वो बात नहीं बताते जो वो अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं, है ना. तो इसलिए आपके अंदर वो लिसनिंग स्किल्स भी होना जरूरी है.
अब हम आते हैं तीसरी थर्ड क्वालिटी के ऊपर। जो एक थर्ड क्वालिटी होती है वो है आपका एटीट्यूड, फ्रेंडली एटीट्यूड। कि आपका अपने जो आपके पास जो बच्चे हैं, जो 30 बच्चे हैं या 60 बच्चे हैं, या आप 3 सेक्शन में पढ़ाते हैं या 4 सेक्शन में पढ़ाते हैं, जितने भी बच्चे आपके पास हैं, आपका उन बच्चों के प्रति क्या एटीट्यूड है आपका? आर यू फ्रेंड विद देम? व्हाट डू यू कंसिडर देम? वो एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप उनके साथ में किस तरह का व्यवहार करते हैं, कौन सा एटीट्यूड आप रखते हैं? डू यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड और डू यू हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड? तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड का होना, एक फ्रेंडली एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है एक टीचर के लिए। यानी अगर आप फ्रेंडली एटीट्यूड रखेंगे तो बच्चों को आप जो है वो बच्चे आपके पास आना चाहेंगे, आपके पास आके अपनी बातों को शेयर करना चाहेंगे। When they consider you as their friend, so that you should have that friendly attitude. And that is the most, I must say that this friendly attitude is the most essential quality of a good teacher. एक अच्छे टीचर में ये बहुत ही एसेंशियल क्वालिटी है जो होनी चाहिए कि उसका एटीट्यूड बच्चों के प्रति फ्रेंडली होना चाहिए। जब फ्रेंडली होगा तो बच्चा जो है आपको ट्रस्ट करेगा और अपनी बात को शेयर करेगा आपके साथ में। Now let us go to the next quality. Next quality is, we'll talk about this. There is one quotation here about the friendly attitude, that I have learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. यानी आप उनको कैसा फील करा रहे हैं? Are they feeling comfortable with you? यानी वो हमेशा याद रखा जाता है। उस टीचर को हमेशा याद रखते हैं बच्चे जो उन्हें बड़ा कंफर्टेबल फील कराता है क्लासरूम में, जो उनके साथ हंसी मजाक भी करता है, जो उनके साथ उनको डिसिप्लिन में भी रखता है, उनको सिखाता भी है और उनको कंफर्टेबल फील करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एटीट्यूड है वो फ्रेंडली एटीट्यूड हो। जब फ्रेंडली एटीट्यूड होगा तो वो आपके साथ कंफर्टेबल होंगे एंड दे विल फील हैप्पी विद यू। नाउ द नेक्स्ट क्वालिटी इज पेशेंट। पेशेंट का मतलब यहाँ पे रोगी नहीं है, बीमार नहीं है। पेशेंट का मतलब यहाँ पे है सब्र करने वाला है। अ पर्सन हु हैज लॉट ऑफ पेशेंस यानी साबिर, सब्र करने वाला, जिसके पास बहुत सारा सब्र है, जो गुस्सा नहीं करता है, अ शॉर्ट टेम्पर नहीं है, शॉर्ट टेम्पर नहीं है। ये जरूरी है एक टीचर के अंदर सबसे ज्यादा, यानी बीइंग पेशेंट इज अ वर्च्यू ऑफ अ टीचर। आपकी क्लास में बहुत सारे डाइवर्सिफाइड कल्चर से बच्चे आएंगे। ऐसे बच्चे आएंगे जिनका इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग होगा। कोई बहुत इंटेलिजेंट होगा, कोई एवरेज होगा, कोई बिलो एवरेज होगा, कोई अबव एवरेज होगा। वो डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड से आएंगे, डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से आएंगे। उनकी याद करने की शक्ति अलग अलग होगी, है ना। तो उनके सीखने की शक्ति अलग अलग होगी। कोई स्लोली लर्न करेगा, कोई बच्चा बहुत तेजी से लर्न कर लेता है। तो जब आपके पास ऐसे 30 बच्चे हों, 40 बच्चे हों, अलग अलग डाइवर्सिफाइड कल्चर से, तो उसके अंदर आपके अंदर सब्र का होना, पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट विद देम। यू कैन नॉट, यानी सबको आप एक ही रास्ते पर, एक ही उससे नहीं चला सकते, एक ही तरीके से आप उनको डील नहीं कर सकते। 30 बच्चे अगर क्लास में हैं तो दे आर 30 इंडिविजुअल्स। 30 बच्चे हैं तो 30 अलग अलग इंडिविजुअल हैं। उनकी अपनी अपनी जरूरतें हैं, उनके अपने अपने बोलने का तरीका है, उनका अपना अपना सीखने का तरीका है। कोई बच्चा किसी तरीके से सीखता है, कोई बच्चा किसी तरीके से सीखता है। तो 30 इंडिविजुअल हैं आपके पास क्लास में, तो उनको हैंडल करने का भी आपको तरीका आना चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है उसके लिए कि आपको यू हैव टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस, बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है। अब हम आते हैं लास्ट, आज की जो हम लास्ट क्वालिटी डिस्कस करेंगे वो है नंबर 5, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। यानी आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना है अपने वर्क एथिक्स में। वर्क एथिक्स में क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? यानी आपका प्रोफेशनलिज्म है। प्रोफेशनलिज्म क्या है? आप कितने पंक्चुअल हैं स्कूल आने में, अपनी क्लासरूम में पहुंचने में आप कितने पंक्चुअल हैं, ये आपका प्रोफेशनलिज्म है। आप अपने लेसन के लिए कितनी तैयारी करके गए हैं, जो आपको आज लेसन पढ़ाना है उसकी आपने तैयारी की है या नहीं की है, लेसन प्लानिंग आपने की है या नहीं की है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका प्रोफेशनलिज्म है, ये आपका वर्क एथिक है। आप अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं कि नहीं समझते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे पास 30 बच्चे हैं, मुझे इन 30 बच्चों को क्या सिखाना है,
मुझे उनको कल्चर सिखाना है, मुझे उनको लैंग्वेज सिखानी है, मुझे मैथमेटिक्स सिखाना है, साइंस उनको सिखाना है, और साल के एंड में मेरे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मुझे अचीव करने हैं। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 30 बच्चे जो हैं ये हमारी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप अपने लेसन के लिए कितना प्रिपेयर्ड हैं, आप अपने रोल के लिए, टीचर इज ए रोल मॉडल। टीचर जो होता है वो एक रोल मॉडल होता है। तो वो रोल मॉडल आपको देखता है, बच्चा आपकी तरफ देखता है कि मेरा टीचर कैसे बिहेव करता है, मेरा टीचर कैसे चलता है, मेरा टीचर कैसे कपड़े पहनता है, वो अपने आप को कैसे कंडक्ट करता है। बच्चे बहुत गौर से, बहुत कीन ऑब्जर्वर होते हैं बच्चे। वो आपको देखते हैं और आपसे सीखते हैं और उसको इमिटेट भी करते हैं। वो आपकी तरह बिहेव करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपके अंदर जो है वो बहुत ही ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका वर्क एथिक्स, कि आप अपने आप को, एंड नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। आपके अंदर जो है एक एज ए टीचर यू शुड बी प्राउड ऑफ, आपके अंदर ये होना चाहिए कि हाँ मेरा ये प्रोफेशन है, एंड आई लाइक दिस प्रोफेशन, आई लव दिस प्रोफेशन, एंड आई एम इन दिस प्रोफेशन बिकॉज आई लव इट, आई एंजॉय बीइंग विद चिल्ड्रन। मुझे अच्छा लगता है मुझे बच्चों के साथ, है ना। तो ये जो है हमारी कुछ क्वालिटीज हैं जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, कल या परसों में फिर कंटिन्यू करेंगे और इसके ऊपर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। नाउ yes, so this is very important that we have to, I have given some light on few qualities of a good teacher, or how to be a good teacher. The first that we discussed, that was a smile, and then the second that we had communication skills, then listening skills, friendly attitude, being patient, and strong work ethics. These are some of the qualities that we should have. We will continue tomorrow or day after tomorrow. If we don't get any guests, then we will continue with these qualities. And हमारा ये कोशिश होनी चाहिए कि जो कुछ हमें बताया गया उसको हम लिख लें। आज जो हमने बताई हैं आपको बहुत ज्यादा नहीं है, 5 क्वालिटीज हैं, 6 हैं। स्माइल के साथ में अगर हम रखें तो इनको आप लिख लीजिए और लिख करके इनको अपने अंदर समाने की कोशिश कीजिए, इन सारी क्वालिटीज को। अब कोई anybody wants to say anything? Rahul, you want to say anything about any of these qualities? If you want to say, you can speak. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Actually, whatever quality you are talking about, the most important, I think, is patience, actually, because we are handling here small kids, actually. They can make lots of mistakes. They can repeat the things. We can sometimes get stuck with them. We are making happy them, and lots of things मीन्स वे बहुत सारी चीजें ऐसी कर सकते हैं जो हमें बार बार इरिटेट भी कर सकती है किसी इंसान को। बिल्कुल। लेकिन क्या है, हमें पेशेंस रखना है सबसे पहले। जैसे हमारे पास पेशेंस होगा तो हम उन बच्चों को क्या है, धीरे धीरे करके 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन बाद हम उनको उन आदत को धीरे धीरे कर सकते हैं। क्योंकि हमारी क्या है, मेंटेलिटी क्या होती है कि हमने किसी को 2 या 3 बार बोल दिया, अगर फिर हमें बोलना पड़ रहा तो हम क्या होते हैं, पेशेंस को लूज कर जाते हैं अपने, तो वहां पे दिक्कत है। तो ये है, ये सबसे। दूसरी चीज जो इसमें बढ़िया मुझे लगी वो थी फ्रेंडली एनवायरनमेंट, क्योंकि वो स्माइल में ही आ जाता है। एक्चुअली फ्रेंडली का मतलब वही है, हम अपने दोस्तों के साथ सबसे ज्यादा हंसते हैं, बोलते हैं, तो ये सब चीजें करते हैं। तो वो होता है एक हमारे जो अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप होते हैं, ये होते हैं, उनके मुकाबले हम अपने फ्रेंड के साथ बहुत अच्छे से अपनी बातें शेयर कर पाते हैं, उनसे बहुत सारे सजेशन ले पाते हैं। तो वो फ्रेंडली जो एनवायरनमेंट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। बिल्कुल सही बात है राहुल। कई बार हमें लगता है कि एक टीचर का जो रोल होता है ना, वो बिल्कुल एक माँ की तरह होता है। एक जो रोल माँ का होता है वही टीचर का रोल होता है। आप देखेंगे माँ के अंदर बहुत पेशेंस होता है। यानी बच्चा बार बार 10 सवाल करता है, एक ही सवाल को 10 बार पूछता है और माँ बार बार उसका जवाब देती जाती है। ये आप देखेंगे कि जो ग्रैंड फादर होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी होते हैं, उनके अंदर बहुत पेशेंस होता है। बच्चा जो है एक ही सवाल को बार बार रिपीट करता है। मैंने गांव में कई बार ये कहानी सुनी है मैंने, कि बच्चा जो है दादा से पूछ रहा है, दादाजी ये क्या है? तो दादा कह रहे कौवा। बच्चा फिर कहता है दादा ये क्या है? दादा फिर कहता है कौवा। इस तरीके से बच्चा 100 बार पूछता है तो 100 बार दादा उसको जवाब देता है कौवा।
ये पेशेंस है, ये पेशेंस, यही माँ भी करती है, एग्जैक्टली ऐसे ही माँ भी करती है। तो वो इरिटेट नहीं होती है, दादा इरिटेट नहीं होते, फादर हो जाते हैं इरिटेट। फादर से आप 5 बार पूछेंगे, छठी बार जो थप्पड़ जड़ देगा, है ना। ऐसा ऐसा होता है, कई बार हमने भी देखा है गांव में कि 3-4 बार अगर आपने पूछ ली तो 5वीं बार आपको थप्पड़ लगेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है ना, हमें उस तरह से नहीं बनना है, हमें माँ की तरह से बनना है, हमें दादा और दादी की तरह से बनना है। एक टीचर को उसका रोल जो है हमें निभाना है कि नहीं, माँ के अंदर जितना पेशेंस होता है उतना शायद फादर के अंदर नहीं होता। उसकी वजूहत में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो बाहर जाता है, काम करता है, उसको ढेर सारे टेंशन होते हैं, वो सब चीजें होती हैं। ऐसा नहीं कि फादर बुरे होते हैं, फादर बुरे नहीं होते, फादर भी अपने बच्चों के लिए ही तो मेहनत कर रहे होते हैं। वो जाते हैं बाहर, कमाते हैं, मेहनत करते हैं, 24 आवर्स मेहनत करते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी टेंशन होते हैं उनके पास में, तो इसलिए वो इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन माँ के अंदर जो है वो बहुत पेशेंस होता है, दादा दादी में बहुत पेशेंस होता है। तो हमारे अंदर वो पेशेंस जो है हमें वो डेवलप करना है जो एक माँ के अंदर होता है ना। और कोई बोलना चाहेंगे? एनीबडी वांट्स टू हैव एनी कमेंट? बुशरा और साबिया और इकरा और साबिया अब्बासी, साबिया शेख, anything you want to say? सिमरन? सर Yes. कई बार ना बच्चे जिद्दी होते हैं, जिद करके बैठ जाते हैं किसी भी चीज का, उसको मुझे लर्निंग नहीं करनी है, मुझे रीडिंग नहीं कर, कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे जिद करते हैं। तो हमें उसे प्यार से समझाना चाहिए। अगर हम भी उनके साथ जिद्दी बनेंगे तो वो और ज्यादा उस चीज को लेके चलेंगे और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे सर। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। बच्चे कई बार होते हैं, बच्चे तो जिद्दी होते हैं, बच्चे जिद करते हैं, बच्चे कई चीजें लेना चाहते हैं। हमें वो उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है क्लास में कि हमें उनकी जिद भी सुननी है, कई बार उसको भी सुनना पड़ता है। छोटे बच्चे आएंगे, बहुत छोटे जब बच्चे आते हैं तो हम देखेंगे कि वो रोते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं, है ना। क्लास में आएंगे, नहीं मैं बैठूंगा, नहीं वो रोते रहते हैं। लेकिन वो रोना जो है कुछ देर बाद अगर आप उनको कुछ खेलने में लगाएंगे, उनके लिए कुछ अच्छी चीजें आप करेंगे, उनको कोई आप स्टोरी सुनाएंगे, कोई उनको आप नर्सरी राइम सुनाएंगे, उनके साथ आप डांस करेंगे, या कई बार आप उनके जैसी हरकतें करने लगते हैं, जैसी हरकतें वो बच्चे करते हैं, तो उनको फिर लगता है कि ओ ये तो हमारे जैसे ही हैं, वो दोस्ती हो जाती, धीरे धीरे वो दोस्ती हो जाती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें बच्चों के साथ जो हमारा एक एटीट्यूड है, फ्रेंडली एटीट्यूड, वो बहुत जरूरी है। ये चीजें हमें सीखनी है कि हमें अपने स्कूल में हमारे पास जो बच्चे हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है, और हमें जो एक मिट्टी दी गई है, एक रॉ क्ले जो हमारे पास है, उसको हमें क्या बनाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को हम बड़े अच्छे तरीके से निभाएंगे। तो सबसे पहली जो क्वालिटी हर एक के चेहरे पर, जो हमारे टीचर्स हैं इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स में, उन सब के चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल होनी चाहिए। यस, देखिए साबिया कुछ दिखा रही है करके, है ना, तो वो एक स्माइल होनी चाहिए, और उन्होंने स्माइल करके भी दिखा दिया, है ना, तो वो एक बहुत जरूरी है। यस, ओशी, यू वांट टू से समथिंग? कई दिन से आपको सुना नहीं है ओशी, बिकॉज यू आर बिजी विद योर एग्जामिनेशन। यस सर, यस सर, बच्चों के साथ पेशेंस रखना पड़ता है, और मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। उनको सुनो, वो क्या बोलना चाहते हैं, और उस हिसाब से सर उनको देखो। पेशेंस और स्माइल सबसे दूसरे नंबर पे स्माइल आती है सर। अगर हमारा बिहेव उनके साथ फ्रेंडली रहेगा तो वो ज्यादा अच्छे से अपनी बात को हमारे सामने रख पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ बिल्कुल। तो अभी से एक तो मैं ये चाहूंगा कि आप सब जो है कुछ प्लान करें कि जब पहला दिन होगा, बच्चे स्कूल में आएंगे, तो टीचर्स उनको किस तरीके से वेलकम करेंगे, है ना। अभी से कुछ प्लान करिए, और फिर हम कल परसों में कोई मीटिंग करेंगे, तो उस मीटिंग में आप हमें बताइएगा कि आपका क्या प्लान है, कैसे आप बच्चों को वेलकम करना चाहते हैं, किस तरीके से आप उनका स्वागत करेंगे, उनको खुशामदीद कहेंगे स्कूल में, दैट दे बिकम पार्ट ऑफ IAS। ठीक है, चलिए, और कुछ किसी को बोलना है? Sabia Hussain, you are smiling, you want to say something? फैमिली एटीट्यूड के साथ और बच्चों के साथ घुलने मिलने से ज्यादा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होने चाहिए, क्योंकि जब बच्चों को कुछ ज्यादा ही फ्रीडम दी जाती है तो वो बहुत ज्यादा जब फ्रेंडली हो जाते हैं तो हम एकदम अगर स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं तो वो फिर फॉलो नहीं करते।
तो हमें अपना नेचर इस तरीके से रखना चाहिए कि हम फ्रेंडली, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ हाँ, देखिए कल जो है ना वो आपको जो एक क्वेश्चन आया था ये बैलेंस करने का, कि आपको डिसिप्लिन और स्माइल में बैलेंस करना है। कल एक बात बताई गई थी ना, वो टीचर ने भी बोली थी, उन्होंने कहा था कि आपको बैलेंस करना है स्माइल और डिसिप्लिन। यानी आप इतना भी स्माइल ना करें कि बच्चे आपके सर पे बैठ जाएं, है ना। तो वो डिसिप्लिन को भी कंट्रोल करना है आपको। एक हद होती है, उन हुदूद में रहना है। और लेकिन उसके बावजूद माँ जो है वो देखा है ना, माँ बहुत प्यार करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। जो स्ट्रिक्ट माँ होती हैं वो बच्चे को बहुत प्यार भी करती हैं और उनको डिसिप्लिन भी करती हैं। यही हमारा काम है ना। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम पहली चीज कॉर्पोरल पनिशमेंट, यानी जो थप्पड़ मारने वाली बात है, ये तो बिग बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, नो 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 कॉर्पोरल पनिशमेंट एट ऑल। हमें बच्चे की साइकोलॉजी को समझना है कि वो बच्चा क्या चाहता है, क्या हमसे चाहता है, क्यों वो ऐसी हरकतें कर रहा है ना। वो अटेंशन चाहता है आपकी कई बार, इसलिए वो हरकतें करता है। तो आपको उसको समझना होगा और उसकी बात को सुनना होगा। यू हैव टू बी ए लिसनर, अ गुड लिसनर। आपको उसकी बात को सुनना है, समझना है और फिर उसको सुधारने की कोशिश करना है कि किस तरीके से उसकी जो प्रॉब्लम है, जो उसकी समस्या है, उसको हमें कैसे सुधारना है। ठीक है, चलिए हमारा आज का टाइम हो गया, क्योंकि हम ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहते। आप लोग बिजी हैं, तैयारी कर रहे हैं, बच्चों को वेलकम करने की, क्लासरूम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। फिर कल फिर मिलेंगे इसी समय इंडिया के टाइम से 11:30। ओके, it's a good time that I want to spend with you, half an hour. I like that and I feel that I'm there with you all. Okay, thank you and have a great time. You too, sir.